Hello everyone, welcome to Kavis IAS. So today in this particular session, we will discuss all the questions of polity which were asked in the UPSC CSC prelims examination 2023. हम लोग सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करेंगे. We will also try to understand the difficulty level of the questions. So all of you who has given the exam, please tally your answer with our answer keys. Obviously the UPSC official answer key will be the official for you, but we will try to analyze the question paper, the difficulty level as well as the conceptual analysis, which is very important for UPSC. Okay, and all of you who has not given the examination, maybe you are thinking to give the examination, to appear in the examination for the from next year onwards, definitely you have to understand the pattern of the एग्जामिनेशन, क्योंकि इस बार से यूपीएससी का जो पॉलिटी का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है. तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड वंस वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन which were asked, this is basically set D. So we are actually talking about set D of the question paper. Question number 10 is saying, consider the following statement in respect of election to the President of India. So if I talk about this particular question, we all know President of India's election is specifically mentioned in Article 54, and the way the election happens, जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का, वो हम लोग का आर्टिकल 55 में उसके बारे में दिया गया है. Now the options are: option 1, the members nominated to either house of the parliament or the legislative assemblies of the states are also eligible to be included in the electoral college. We all know for presidential election there must be electoral college, and in the particular electoral college we know only elected members are there. Only elected members for Lok Sabha, for Rajya Sabha, as well as the state and union territory assemblies. So specifically they are saying the members nominated to either house of the parliament or the legislative assembly of the state are also eligible to be included. It's not the correct statement, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें लोकसभा का जो इलेक्टेड मेंबर है वो रहते हैं. राइट नाउ in our Lok Sabha all are elected, because we all know that right now we have 543 members and all are elected. Previously there were 2 Anglo-Indian members in Lok Sabha, but after 104th Constitutional Amendment Act, that particular 2 posts are now right now deleted. So they are not there in the Lok Sabha. So all those members of Lok Sabha are right now elected. So elected members of Lok Sabha. In Rajya Sabha we know we have 233 elected members because 12 members are nominated. So those 12 members, they don't vote in the presidential election. They are not included in the presidential electoral college. And in state or UT also the elected assembly members can participate in the election. So here they are asking about the nominated. So this is not a correct option. Members nominated to either house of the parliament or the state legislative assembly of state are eligible to be included. No, they are not eligible. Only the elected members are eligible. So this particular statement is wrong. Statement 2 is saying, higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. So if we calculate the MLA votes value, you can see the value of an MLA vote is total population of state or union territory by total number of elected members of the state legislative assembly into 1000. So the question, the statement is saying higher the number of elective assembly seats. So if this particular number is higher, so as per the statement the value of MLA vote will increase. Actually it will decrease. So if you just higher the number of elected members, automatically the vote will decrease because it's a ratio, right? So in this case, this particular statement, that option, the statement 2 is also wrong. The statement C is saying
the value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. So if I talk about the value of vote of MLA, then Madhya Pradesh is greater than Kerala. Now this is something which is very difficult to remember. ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम लोग हर एक जो स्टेट है उसका जो एमएलए उसका वैल्यू कैलकुलेट करके उसको याद रखे. दैट इज बेसिकली डिफिकल्ट. सो फॉर योर information, the value of the vote of each MLA in Kerala is 152 and the value of vote of each MLA in Madhya Pradesh is 131. So specifically Kerala is in higher compared to Madhya Pradesh. But you can see here it is saying the value of vote of each MLA is Madhya Pradesh is greater than Kerala. So this is also a wrong statement. And the fourth statement is saying the value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. That is basically correct. So in this particular statement, only option 4 is correct. So how many of the above statement are correct? Answer will be only one. So option A is the correct answer for this question. Now ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मुझे लगता है. सो वी कैन मेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन ए, you can say it's a difficult question. Why it's a difficult question? Because practically speaking it's not possible for the students to remember the value of vote of the MLAs of 28 states. So we have 28 states right now. So थोड़ा सा difficult है याद रखना. तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिफिकल्ट मार्क कर लेते हैं. तो ठीक है, चलो हम लोग चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. So the next question is saying, question number 2, consider the following statement in respect of the national flag of India according to the flag code of India 2002. Statement 1 is saying one of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm into 400 mm. And statement 2 is saying the ratio of the length to the height, that is width, of the flag shall be 3:2. So length and width का ratio तो 3:2 होता है. That is very very correct. But if I talk about the standard size of flag, this is not the standard size. You can see the standard size over here. So started from 6000 to 4200 to 150 to 100. But here you cannot find this is 600 into 400. So 600 into 400 is not there in this particular list of standard size. So definitely statement 1 is not correct. Statement 2 is correct. It's a factual question. So there should not be any analysis in this question. So here statement 1 is correct, but statement 2 is statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. आप लोग हमेशा याद रखना जब हम लोग आंसर देंगे तो थोड़ा सा देख के आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शन से यूपीएससी बहुत खेलता है. ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो होता है ये बहुत आप बोल सकते हो क्लोज ऑप्शन से. सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग गलत मार्क कर सकते हैं. सो डेफिनेटली व्हेन यू विल मार्क इन ओएमआर, सो प्लीज बी कॉशियस. ठीक है, तो थोड़ा देख के आंसर दीजिएगा. इसमें स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, डेफिनेटली इट्स 3:2, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है. दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, specifically in the set it is question number 25. Consider the following statements in the respect of Constitution Day. So statement 1 is saying the Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens. हम लोग को पता है कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it was basically adopted, it was basically enacted, and also you can say it was ready, whatever the term you say, on 26 November 1949, right? But हम लोग को ये भी पता है as the Lahore session happened in 1930, and on that particular session Indian National Congress decided to struggle for the independence as well as Purna Swaraj. So the Purna Swaraj Day was basically 26 January 1930. So we waited
for another 2 months and on 26 January 1949 हम लोग वो जो 26 जनवरी है उसको यादगार करने के लिए in this particular day the government of India enforced the constitution which was enacted, adopted, and it was ready on the 26 November. So we waited for 2 months. So हम लोग का जो 26 नवंबर 1949 है इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल के ऑब्जर्व करते हैं एंड 26 जनवरी इज आवर रिपब्लिक डे बिकॉज ऑन दैट डे इंडिया बिकेम रिपब्लिक सॉवरेन democratic, right? So from that point of view option statement 1 is 100% correct. If I talk about the statement 2, let me change the color of the ink. On 26 November 1949 the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हम लोग का तो 26 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, तो ड्राफ्ट तो बहुत पहले हुआ था, आप लोग को पता होगा। हम लोग का जो ड्राफ्टिंग कमिटी है ये 29 अगस्त 1947 में इसका जो काम वो शुरू हुआ था। सो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 बिकॉज 26 नवंबर तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, it was adopted on 26 November. So वो दिन में कैसे ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप हो सकता है? डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल. सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सो यू कैन से statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. I think this is a very easy question, so we can mark this question as easy. It's a very easy question, right? Everyone can answer this question. Even those who are preparing for state PCS also can answer this question. It's a very easy question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो होम गार्ड्स इज बेसिकली, नाउ हु आर द होम गार्ड? इफ एनीबॉडी आस्क यू, होम गार्ड आर एस्टैब्लिश्ड ऑन December 1946. यू कैन अंडरस्टैंड द टाइम. आपको समझ में आ रहा है ना, वो टाइम है December 1946 जब हम लोग का देश में कम्युनल राइट बहुत होता था, बिकॉज ऑन दैट टाइम इंडिया वाज ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ इंडिपेंडेंस. बट वो टाइम में हम लोग का इंडिया और पाकिस्तान जो डिवीजन हुआ था वो लेके कम्युनल राइट होता था, स्पेसिफिकली हिंदू और मुस्लिम के बीच. तो वो जो दो कम्युनिटी थे उसमें कम्युनल राइट था. सो मेनली टू काउंटर दैट पर्टिकुलर कम्युनल राइट इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन December 1946. सो ये जो क्वेश्चन किया गया है ये होमगार्ड के ऊपर किया गया है. चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग होम गार्ड्स आर रेस्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. होम गार्ड्स आर रेस्ड अंडर होम गार्ड एक्ट, ये तो ठीक है, लेकिन रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि होम गार्ड जो है वो रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटोरीज में आते हैं. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फैक्चुअली इनकरेक्ट. स्टेटमेंट जो नंबर 2 है वो थोड़ा देख लेते हैं. द रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. ये करेक्ट है, क्योंकि होमगार्ड जो है ना ये एक्चुअली एक सप्लीमेंटरी फोर्स, ऑक्सिलरी फोर्स होके काम करता है, स्पेसिफिकली टू हेल्प द पुलिस फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री. So definitely statement 2 is correct. This is a correct statement. And the statement 3 is saying to prevent infiltration on the international border coastal areas, the border wing home guards battalions have been raised to some of the states. Yes, for example, if I talk about Punjab, if I talk about Tripura, if I talk about Rajasthan, even in Gujarat also, the home guard border coastal areas are there, home guard border wing. So this is also a factually correct statement. So here how many of the above statements are correct? Only 2. Option B is the correct answer. This is basically a moderate question for you. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग with reference to India consider the following pairs. So specifically 3 actions and 3 acts are given, we need to tally. First,
action is saying unauthorized wearing of police और military uniforms. पुलिस और military का जो यूनिफॉर्म होता है वो अगर unauthorized किसी ने पहन लिया, this comes under official secret act. It's correct. It's correct answer. It's correct action. The statement 2 is saying knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties. देखिए ये जो एक्शन है ना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं आता है, सो इट्स एक्चुअली रॉन्ग. ये जो एक्शन है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है. सो स्टेटमेंट 2 एक्शन 2 and the act 2 is basically wrong. This is wrong. 3 is saying celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others, that comes under Arms Act 2019. So it is correct. So in this particular question, only 2 will be answered. So this is basically also moderate. I will not say it's a difficult question, but it's not a easy question as well. ठीक है, आप लोग अभी थोड़ा सा पैटर्न देख लीजिए. इस बार ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें थोड़ा सा इनैक्टमेंट्स, थोड़ा सा एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो दिस क्वेश्चन आर बेसिकली नॉट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन. सो आप लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का जो इनैक्टमेंट्स है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल designated as the Governor General of India. Personally speaking, this question is very easy for you. ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री में भी रह सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रह सकता है. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन. वी ऑल नो कि हम लोग का पहले अगर हम गवर्नर जनरल का बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन started from Regulating Act 1773. And who was the first Governor General of Bengal? Obviously, William Hastings. Right? So he was the first Governor General of Bengal. Now, if he is the first Governor General of Bengal, last Governor General of Bengal was Lord William Bentinck. So he was the last Governor General of Bengal and he was the first Governor General of India. And this particular designation added by the Charter Act of 1833. सो बेसिकली ये जो चार्टर एक्ट 1833 है इसमें हम लोग देखे थे कि कैसे सेंट्रलाइजेशन हुआ है हम लोग का देश में. ये जो ब्रिटिश गवर्नेंस है इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ है. स्पेसिफिकली ये टाइम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही था. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइम व्हेन इट वाज कंपनी रूल. राइट नाउ इसको अगर थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे, द क्राउन रूल is basically started in this country from Government of India Act 1858. इसमें फिर डेजिग्नेशन चेंज होगा. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज होकर वो हो जाएगा वाइसरॉय. एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया and first viceroy of India was Canning, Lord Canning. Right, in his time only the Sipai mutiny happened. And after that again, if I talk about Indian Independence Act, the enactment by which India got independence on 1947, again the viceroy designation got changed to Governor General of India, but that should be Governor General of Independent India. And the person was definitely the last viceroy and the first Governor General of Independent India, that is Lord Mountbatten. So in this question they are saying which one of the following act
was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? So here the answer will be Charter Act 1833. Correct answer will be option D. In this case, definitely I will say the answer is, the question is very very easy. ठीक है, चलिए next question. Question number 7 in my session and question number 91 of the set. In essence, what does due process of law mean? This is a very good question. I personally think first conceptual question for this year UPSC's set D. The question is saying, in essence, what does due process of law mean? Four options are there. The principle of natural justice, option A. Option B, the procedure established by law. Option C, fair application of law. And fourth option is equality before law. Now, if we talk about this particular concept of due process of law, I personally feel this particular word, essence, is a key word. This is a key word of this question. Okay. In this case, my answer will be definitely option A, the principle of natural justice. But let me explain the conceptual analysis of this question. Basically, if I talk about due process of law, और हम लोग अगर the procedure established by law, ये दोनों phrase को थोड़ा सा explain करेंगे. This is comes under the interpretation of article 21. अच्छा, पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 में है क्या. चलिए थोड़ा लिख लेते हैं. नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This is basically the statement of article 21. इसका मतलब क्या है? सोचिए, पुलिस किसी को अरेस्ट किया है, ठीक है? तो पुलिस जब किसी को अरेस्ट करेगा, कोई भी पर्सन को जब पुलिस डिटेन करेगा, तो उसमें जो लॉ है, वो लॉ का जो प्रोसीड्यूर दिया गया है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? एक लॉ का तो एक प्रोसीड्यूर होता है. जैसे आप बोल सकते हो कि पुलिस ने अगर किसी को अरेस्ट किया है तो लॉ में दिया गया है कि आपको विद इन 3 months यू द पुलिस हैज टू गिव द चार्जशीट. तो अगर ऐसा होता है कि पुलिस ने चार्जशीट नहीं दे पाया, सो ऑब्वियसली द कोर्ट विल सेट द पर्टिकुलर डिटेन्ड पर्सन फ्री, राइट? क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा चार्जशीट नहीं है. So definitely the court will set that particular person free. So आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है कि एक पर्सन जो है उसका राइट टू लाइफ रहेगा. स्पेसिफिकली हम लोग का जो राइट टू लाइफ है, डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली टू ब्रीथ, यू कैन से इट्स अ राइट टू लाइफ बट विथ डिग्निटी. हम लोग तो एनिमल नहीं है ना, सिर्फ हम लोग का राइट टू लाइफ रहेगा, राइट? इट शुड बी अ लाइफ विथ डिग्निटी. और इसमें आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा लिस्ट दिया है, जो जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप. सो ऐसा एक लिस्ट है जो आपका लाइफ में रहना चाहिए. सो इट्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. तो ये राइट टू लाइफ जो है, ये राइट जो स्टेट है वो आपसे छीन सकता है, और लेकिन छीनने का एक तरीका होगा, दैट इज द एग्जीक्यूटिव हैज टू फॉलो द प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. स्पेसिफिकली हम लोग ना इसमें 3 टेस्ट करके देखते हैं. 3 टेस्ट. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी अ लॉ. आप जब किसी को अरेस्ट कर रहे हो ना, एज एग्जीक्यूटिव, एज ए पुलिस, सो डेफिनेटली एक लॉ होना चाहिए, राइट? विदाउट लॉ यू कैनॉट अरेस्ट एनी पर्सन, राइट? सो
टेस्ट में नंबर 1 आएगा, इसमें एक लॉ होना चाहिए। देन लॉ मस्ट बी वैलिड, ये भी है, एक वैलिड लॉ होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा लॉ जो आज इन्फोर्स थे आज का दिन में, ऑब्वियसली ऑन दैट टाइम ये देखा जाएगा। एंड 3 इज प्रोसीड्योर established by law are maintained properly or not। जो लॉ में जो प्रोसीड्योर दिया गया है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पुलिस जब किसी को अरेस्ट करता है, आपको पता है अरेस्ट वारंट आपको देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद वो अगर प्यूनिटिव डिटेंशन होगा तो द डिटेन्यू कैन टेक द लीगल एड, राइट। 24 आवर्स के इंक्लूडिंग द जर्नी आपको उसको कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। जनरली 3 मंथ्स होता है, कभी कभी एक्सटेंशन भी होता है, आपको चार्जशीट देना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रोसीड्योर द पुलिस हैज टू मेंटेन। लेकिन आप गौर कीजिए, ये जो 3 टेस्ट है ना, देयर मस्ट बी ए लॉ, एक लॉ होना चाहिए, लॉ शुड बी ए वैलिड वन, एंड प्रोसीड्योर जो लॉ में दिया गया है दोज विल बी मेंटेन्ड। ये जो 3 टेस्ट है, दीज आर बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक्शन को टेस्ट कर रहा है, मतलब पुलिस का जो एक्शन है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन को टेस्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज आप देखिए, ऐसा तो हो सकता है ना कि एक लॉ है, लॉ वैलिड भी है, लॉ में जो प्रोसीड्योर है वो एस्टेब्लिश्ड, मतलब वो मेंटेन किया गया है, जो आपका लॉ में प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड है, बट एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि जो लॉ है वो लॉ ही फेयर नहीं है। द लॉ इज नॉट फेयर, द लॉ इज नॉट रीजनेबल, द लॉ इज नॉट जस्ट, दिस कैन हैपन। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन तो आप चेक कर ले हो थ्रू प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बट ये जो लेजिस्लेटिव एक्शन है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव जो प्रोसीड्योर है, जो लॉ है, दिस लॉ इज इट फेयर, इज इट रीजनेबल और इज इट जस्ट, ये तो जनरली हम लोग नहीं चेक करते जनरली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, आपको शायद पता होगा, मानेका गांधी, मानेका गांधी केस, that is in 1978 when Maneka Gandhi's passport was seized by the government. So definitely Maneka Gandhi approached to court, so what is happening with me, क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से एक पासपोर्ट एक्ट शायद 1967 वाला था, उसमें पासपोर्ट को सीज किया जा रहा है, and without almost any reason. So on that time Supreme Court said that yes, the 3 tests must be followed, the executive action, the procedure established by law must be followed, but अगर आपको नेचुरल जस्टिस देना है तो आपको 4th टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द 4th टेस्ट? 4th टेस्ट इज द लॉ शुड बी फेयर, द लॉ शुड बी रीजनेबल एंड द लॉ डेफिनेटली जस्ट। ये 4th टेस्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, and the court has to hear both the parties, दोनों पार्टी को ही आपको सुनना पड़ेगा। आफ्टर दैट द एग्जीक्यूटिव एक्शन as well as the legislative action, you have to test both, then only you can say a particular person will get the natural justice. सो आपको अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप देखेंगे, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बेसिकली ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जापान। So definitely in our constitution in article 21 we have procedure established by law where the arbitrary executive action is being checked, लेकिन आपको लॉ भी चेक करना पड़ेगा, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो भी चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये लॉ फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट है कि नहीं। तो इसके लिए
अगर आप बोलेंगे ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी हम लोग मेंटेन करते हैं, एंड दिस इज एज पर द सुप्रीम कोर्ट एंड एज पर द मानेका गांधी केस. सो इफ यू टॉक अबाउट द एसेंस, मे बी दिस पर्टिकुलर टर्म यू विल नॉट गेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका एसेंस यही है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. नाउ यू कैन सी प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ डेफिनेटली नॉट बी द करेक्ट आंसर. इक्वालिटी बिफोर लॉ तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका आर्टिकल 14 का एक पार्ट है. ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. बट इसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, व्हाट इज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक लॉ है, ठीक है, देयर इज अ लॉ. नाउ हु इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर लॉ? एक ये जो लॉ है हम लोग का देश में, वो कौन बनाता है? लेजिस्लेचर. और ये जो लॉ है इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? इसको अप्लाई कौन करेगा? इसको एनफोर्स कौन करेगा? डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव. तो इस लॉजिक में अगर आप देखोगे, एक लॉ को फेयरली अप्लाई करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है ना. एग्जीक्यूटिव मस्ट अप्लाई द पर्टिकुलर लॉ इन ए फेयरली वे. सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज ऑलमोस्ट सेम. क्योंकि आप अगर एक लॉ को अप्लाई करोगे विथ फेयर, automatically you can say that there must be a law must be valid, and all those procedures जो ये लॉ में दिया गया है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं. लेकिन ये जो मैंने प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ बोला है कि लॉ रिजनेबल है कि नहीं, जस्ट है कि नहीं, इधर फेयर वर्ड भी है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. लेकिन हमेशा याद रखना, इधर फेयर लॉ का बात नहीं किया गया है, इधर फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ का बात किया गया है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेयर लॉ. थोड़ा सा ये ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बारे में बोला गया है, फेयर लॉ के बारे में बोला नहीं गया है. अगर फेयर लॉ होता तो हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ले सकते हैं आंसर. लेकिन इधर बोला है लॉ का एप्लीकेशन फेयर में होना चाहिए, तो अप्लाई तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव होता है, तो ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ही हो गया. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज, द एसेंस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन. दिस इज ए मॉडरेट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड. ठीक है, इसमें ए और सी के बीच आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट 100% द करेक्ट आंसर विल बी ए. ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं. हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is question number 92 of the set, and question number 8 of our session. So consider the following statement. देखिए पहले statement 1 में क्या दिया गया है. In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. This is basically a correct statement because prisons हम लोग का state list का एक सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज सेइंग इन इंडिया prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government. हम लोग को पता है कि ये जो prisons एक्ट था 1894 का, इसमें ही बोला गया था कि ये prisons का जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहेगा. सो ये भी करेक्ट है. लेकिन एक चीज भी आपको देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 जो है और स्टेटमेंट 2 है, दोनों ही करेक्ट है. तो इसमें ऑप्शन ए में देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो ये हम लोग को लेना पड़ेगा. और स्टेटमेंट ये दोनों तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए. और बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, ये भी लेना पड़ेगा. क्योंकि ये दोनों में तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है. लेकिन इसमें एक चीज आप देख लीजिए, ये जो प्रिजन्स एक्ट 1894 है उसमें बोला गया है कि डेफिनेटली कि ये जो प्रिजन्स का सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहेगा. और ये भी बोला गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट डेफिनेटली ये जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रिजन्स का, ये देखभाल करेगा, रेगुलेट करेगा. बट इसका रीजन ये नहीं है, क्योंकि ये एक्ट तो बहुत पहले का है और स्टेटमेंट तो अभी प्रिजन्स ऑलमोस्ट स्टेट लिस्ट में आता है. सो इन दिस केस यू कैन
take the correct answer as both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation for the statement 1, क्योंकि statement 1 का explanation है state list. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रिजन एक्ट 1894 में दिया गया था इसलिए ये स्टेट के अंडर है. यस, इन 1894 डेफिनेटली इट वाज कम्स अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट राइट नाउ इसका रीजन नहीं है. नहीं, स्टेटमेंट 1 का जो रीजन है, अगर आप एक्सप्लेन करोगे स्टेटमेंट 1 को तो आप बोल सकते हो कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी हम लोग का देश में नहीं है. डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, बट इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ है. 1894 का जो प्रिजन्स एक्ट है उसके मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है प्रिजन, लेकिन अभी जो प्रिजन्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करता है, प्रिजन्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट करता है, ये स्टेट लिस्ट के दिया गया है इसलिए होता है. सो हियर statement 2 is not the correct explanation for statement 1, but definitely in this case answer will be option B. So this is basically a tricky one, so I will term this question as a moderate question. It's a good question. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following statements best reflect the chief purpose of the constitution of a country? 4 options are there. Option A, it determines the objective for the making of necessary laws. Option B, it enables the creation of political offices and a government. Option C, it defines the limit, the powers of the government, and it secures social justice, social equality and social security. देखिए ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें चारों ऑप्शन ही करेक्ट है. ठीक है, लेकिन इसमें दिया गया है कि चीफ पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस से पूछा गया है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, and all these are basically the purpose of a constitution. Constitution actually एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम लोग फॉलो करते हैं हम लोग का देश में गवर्नेंस के लिए. एंड वी ऑल नो द ऑर्गन्स लाइक एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, लेजिस्लेटिव का काम क्या होगा, लेजिस्लेचर का काम क्या होगा, जुडिशियरी का काम क्या होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है. सो बेसिकली इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. बट if I talk about the chief purpose, then definitely the chief purpose will be doctrine of limited government. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक जो गवर्नमेंट होगा डेफिनेटली वो जो काम करेगा, जो गवर्नेंस देगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा. दैट इज करेक्ट, बट उसका भी कुछ लिमिटेशंस होगा, कुछ कुछ ऐसा काम होगा जो गवर्नमेंट कर नहीं पाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, वेयर वी आर सेइंग द स्टेट कैन नॉट डू दिस, द स्टेट कैन नॉट डू दैट. सो कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑल्सो limits the power of the government. This is basically known as the doctrine of limited government, and this is basically the most important chief power, most important, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें गवर्नमेंट को आप लिमिटाइज करते हो कि कौन सा काम आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, और कौन सा काम आप कर पाओगे. सो गवर्नमेंट कैन डू दिस एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट. दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है मेन पर्पस. ठीक है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट. सो अगेन आई एम सेइंग all 4 options are correct, but here they are asking the chief purpose, the main purpose क्या है, that is doctrine of limited government. So in this case the answer will be option C. It defines and limits the powers of government. Basically this question is a moderate one, it's a conceptual question, so you should know about the doctrines and all, then only you can give the answer, because otherwise आप इसको social justice, social equality भी बोल पाओगे, क्योंकि ये philosophical part of the constitution है. ठीक है, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर इन द गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है, बट डेफिनेटली करेक्ट आंसर अगर आप बोलेंगे, चीप पर्पस अगर बोलेंगे, इसमें चीप बोला गया है, सो यू हैव टू एक्चुअली टेक द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस 4. डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 of our session, question number 10 of our session, and 94 of the set. In India, which one of the following constitutional amendments
was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights. चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है. फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड वन इज 42nd अमेंडमेंट, थर्ड वन इज 44th अमेंडमेंट एंड फोर्थ वन इज 86th अमेंडमेंट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस अमेंडमेंट्स, देखिए पहला बात है 86 अमेंडमेंट में तो आपको पता है कि ये 2002 में हुआ था और दिस इज बेसिकली स्पेसिफिकली रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन ये आर्टिकल 21A में ऐड हुआ था. ठीक है, दिस इज बेसिकली द 11th फंडामेंटल ड्यूटी द पेरेंट्स टू गिव द एजुकेशन टू द माइनर चिल्ड्रन, द एलिमेंटरी एजुकेशन. तो डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर नहीं होगा. आप लोग अगर बोलेंगे 44th अमेंडमेंट, स्पेसिफिकली 44th अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड क्योंकि वो 42nd अमेंडमेंट में जो खराब चीज हुआ था हम लोग का देश में, स्पेसिफिकली इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1976. तो 1978 में आके मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस किया था, जो खराब हुआ था उसको मेनली अंडू किया था. सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा. अभी आपको कंफ्यूजन ये दोनों ऑप्शन में हो सकता है, दैट आइदर इट कैन बी ए और इट कैन बी बी. नाउ दे आर सेइंग दैट व्हिच अमेंडमेंट वाज widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation. मतलब एक judicial interpretation आया है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको कौन सा अमेंडमेंट लेके आए हो. बहुत अच्छे से पहले आपको ये क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना पड़ेगा. दे आर सेइंग दैट बेसिकली देयर इज ए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, देयर इज ए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं. एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आया है, उसको आप काउंटर करने के लिए, उसको आप ओवरकम करने के लिए एक अमेंडमेंट को लेके आ रहे हो. कौन सा अमेंडमेंट आंसर होगा? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली if you are also giving the state PCS in the mains exam, this type of question can be asked. चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए हम लोग का आर्टिकल 46 अगर आप देखेंगे उसमें क्या बोला है ना, promotion of educational and economic promotional and educational and economic interest of SC, ST and other weaker section. And this is basically a part of DPSP, part 4, right? DPSP means those are the directives that is given by the Constitution of India to the state, और स्टेट को क्या करना है, ये डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करके लॉज बनाना है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग का पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव्स होता है, वो डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करना एक स्टेट का बेसिक फंक्शन है, राइट? स्टेट जब कोई लॉ बनाएगा तो डीपीएसपी को ऑब्वियसली कंसीडर करके ही वो इनेक्टमेंट्स होगा, लॉज का इनेक्टमेंट होगा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा, चाहे आप जो भी बोले. 1951 में स्पेसिफिकली 1951 मैड्रास गवर्नमेंट में डिसीजन लिया कि वो आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट करेंगे. कहाँ करेंगे ना, जो मेडिकल कॉलेज होता है ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट किया जाएगा. एंड on the basis of it madras गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन स्टार्ट किया. अभी इसमें प्रॉब्लम जो हुआ, आप देखिए जब ये रिजर्वेशन हुआ तो एक चंपक दोराईराजन बोल के लड़की थी, उसको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स था, फिर भी उसको मेडिकल में चांस नहीं मिला. सो चंपक दोराईराजन अप्रोच टू madras court and then supreme court that
माय लॉर्ड, माय आर्टिकल 15 इज गेटिंग वायलेटेड बिकॉज आर्टिकल 15 में बोला गया है कि कास्ट बेस्ड डिवीजन हम लोग का देश में नहीं होता है। रिलीजियन, रेस, कास्ट ये सब है, आपको पता है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो कास्ट के ऊपर डिवीजन नहीं होता है, लेकिन इधर कास्ट के ऊपर डिवीजन हो रहा है। सो स्पेसिफिकली टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 46 इन द स्टेट, द मैड्रास इज वायोलेटिंग आर्टिकल 15। तो obviously the matter went into the court of Supreme Court. So Supreme Court and Patna High Court rejected this particular decision of Madras government. Why? Because DPSP जो है वो है आपका inferior and fundamental rights are superior. So you cannot, you cannot enforce a law to implement DPSP एंड देखिए डीपीएसपी को तो इंप्लीमेंट करना आपका काम ही है, दैट इज अलग सा बात है। लेकिन उसके वो चक्कर में अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। क्योंकि आप देखिए, आप अगर 46 को इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 15 वायलेट होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 में क्लियरली बोला गया है कि कास्ट बेस्ड डिवीजन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी रहेगा हम लोग का सोसाइटी में, और कास्ट रिलीजियन बेस्ड जो डिवीजन है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो बेसिकली व्हेन मैड्रास गवर्नमेंट इज ट्राई टू इंप्लीमेंट द आर्टिकल 46 बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, व्हाटएवर यू से, दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव एक्शन इज वायलेटिंग आर्टिकल 15, जो आप बोल सकते हो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना एक गवर्नमेंट का काम है, दैट इज करेक्ट, but DPSP is inferior, fundamental rights is superior. So to implement that particular DPSP, you cannot, violate a fundamental right. ये आप नहीं कर सकते हो। So ये क्या है? ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, और ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये कौन सा केस में आया है? ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये कौन सा केस में आया है? ये आया है चंपक, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया, दोराई राजन केस में, ठीक है। अभी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो आ गया, तो गवर्नमेंट अभी क्या करेगा? गवर्नमेंट आर्टिकल 46 जो है, इसको इंप्लीमेंट अगर करेगा तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 15 वायलेट हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डू सो। तो ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। सो इसको ओवरकम करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ हम लोग का देश का पार्लियामेंट में इन 1951, और इसमें आर्टिकल 15 के अंडर हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया, जिसमें बोला गया है कि द स्टेट कैन make some provision for the weaker section, scheduled caste, scheduled tribes, specifically for educational and economic interest purposes. So अब देखिए, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ, दैट इज चंपाकम दोराईराजन केस, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए फाइनली द पार्लियामेंट हैज टू ऐड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस और नो। सो हम लोग बोल सकते हैं इसमें और भी बहुत कुछ हुआ था, जैसे आपको पता है 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, स्पेसिफिकली हम लोग का जो जमींदारी लॉज है उसको एबोलिश करना था, तो डेफिनेटली उसमें आर्टिकल 31, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन ए का प्रॉब्लम हो रहा था, इसमें आर्टिकल 31A 31B ये सब भी ऐड हुआ था, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है जो चंपाकम दोराईराजन केस में हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि यू कैन नॉट इंप्लीमेंट आर्टिकल 46 बिकॉज इट्स अ डीपीएसपी, बट डेफिनेटली यू कैन, इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट, बट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप एक फंडामेंटल राइट को तो वायलेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि डीपीएसपी इज बेसिकली इंफीरियर, फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर।
सो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करके करना आपका काम है बीइंग ए स्टेट, बट दैट डजंट मीन कि आप फंडामेंटल राइट को वायलेट करोगे। सो ये जो चैलेंज है इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किए थे, जिसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्लियरली बोला गया था कि जो वीकर सेक्शन है उसके लिए हम लोग रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अभी अगर कोई अप्रोच करेगा कोर्ट में कि एक जनरल कैंडिडेट होके भी मुझे रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है और एक एससी एसटी को क्यों ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो आप बोल सकोगे दिस इज ऑलरेडी इन फंडामेंटल राइट्स, right? So the best answer for this question will be first amendment. It's a brilliant question. I am giving this question as moderate one. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको शायद समझ में आ भी गया। इसमें आपका मेन जो चीज है दैट इज लैंग्वेज, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सो आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इफ यू आर अवेयर अबाउट द लैंग्वेज कीवर्ड्स, तो आप आंसर कर पाओगे। मुझे पर्सनली लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्लैश बॉडीज इन इंडिया। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है। सो ऑप्शन 1 or you can say statement 1, the National Commission for Backward Classes; 2, the National Human Rights Commission; 3, the National Law Commission; and 4, the National Consumer Disputes Redressal Commission. How many of the above are constitutional bodies? देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 बी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिस इज बेसिकली ये स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब उसमें पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके ये बॉडी को हम लोग बनाए थे। एंड स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द लॉ दैट इज ह्यूमन राइट एक्ट 1993, under the human right act 1993, this particular body, National Human Rights Commission, was made. So basically it's a statutory body, it is not a constitutional body. So 2 is not correct, 1 is correct as of now. National Law Commission is basically a body which is made by the executive instruction, government instruction. So it's an executive body, it's a non-statutory body, non-constitutional body, it is not mentioned in the constitution. So 3 is also not the correct, it is not a constitutional body. Fourth one is National Consumer Dispute Redressal Commission. Basically, this is a quasi-judicial body. This is a quasi-judicial body. It's not a 100% judicial body, it's a quasi-judicial body. And it was set up in 1988 basically, ठीक है, under the Consumer Protection Act 1986. Basically this question is from governance, so here you can also eliminate the fourth. So only National Commission for Backward Class is the correct answer. So how many of the above are constitutional bodies? Only one. This is basically a easy question on the UPSC's point of view. मैं आपको ये बोल सकता हूँ ये easy question है, ये कोई tough question नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ आवर सेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पहले स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग, if the election of the president of India is declared void by Supreme Court of India, we all know कि हम लोग का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, सिर्फ प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन नहीं, वीपी का जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन का प्रोसेस अगर ठीक नहीं है, वो इलेक्शन में अगर ऐसा कुछ मेथड यूज किया गया है दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉट एज पर द आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 अगर वायोलेशन होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और वीपी का भी इलेक्शन में अगर कुछ मेथड्स खराब है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन को वॉइड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो फाइनल कॉल सुप्रीम कोर्ट ही लेंगे। एनीवे, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court of India,
all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision became invalid। मतलब ये बोला गया है, अगर आप आर्टिकल 71 के बारे में बात भी करेंगे जिसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन void the election if the process is not correct। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि सोच लीजिए कि 3 साल प्रेसिडेंट काम किया था, लेकिन 3 साल के बाद, इलेक्शन का 3 साल के बाद सडनली सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट गिव द वर्डिक्ट दैट दैट पर्टिकुलर इलेक्शन वाज वॉइड। तो ये इलेक्शन को वॉइड किया जा रहा है, तो नया प्रेसिडेंट आपको लेके आना पड़ेगा विथ प्रॉपर प्रोसेस, विथ प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस। तो इसका मतलब ये क्या क्या कि 3 साल में प्रेसिडेंट साहब ने जो जो काम किया है ऑल आर इनवैलिड। ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट जो काम करता है वो तो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुताबिक ही काम करता है ना। आपको ये भी पता है कि हम लोग का देश में जो प्रेसिडेंट है वो एक एक्चुअली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। आपको पता है, नॉमिनल हेड, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। और अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, ही इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। सो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुताबिक ही प्रेसिडेंट काम करता है। तो ये 3 साल में प्रेसिडेंट ने अगर कुछ डिसीजन लिया भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एज पर आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट इज द executive head of this country, so president can some take decision, president some decision can be taken on the name of the president, president के नाम के ऊपर वो डिसीजन हो सकता है। वो कैसे इनवैलिड होगा, क्योंकि वो तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही डिसीजन है ना। सो डेफिनेटली इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। Statement 2 is saying election for the post of president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and election are yet to take place। अच्छा, ये आप ऑप्शन अगर थोड़ा सा देखेंगे, इसमें बोला गया है, सोच लीजिए कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, मतलब एक लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है। इसके लिए क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज में डेफिनेटली कुछ मेंबर्स ऐसा होंगे जो वोट नहीं देंगे, वो पर्टिकुलर स्टेट का मेंबर्स, एमएलएस। सो इसके लिए क्या हम लोग इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे? डेफिनेटली नॉट। ऐसा पहले हुआ है कि गुजरात में, राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व था, उसके बाद भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई ना कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगा। इसका मतलब ये है क्या, हम लोग वेट करेंगे कब ये लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से ठीक ठाक होगा, देन हम लोग उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए हम लोग तो उसको पोस्टपोन कर नहीं पाएंगे। सो डेफिनेटली ऑप्शन 2 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or her assent। देखिए, as per Article 111, President will give the assent। President also can reject the particular bill, right? President had some veto powers, तो President उसको absolute to absolute veto, President उसको reject कर सकता है, President उसको दोबारा भेज सकता है पार्लियामेंट में। और इसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। सो देयर इज नो टाइम लिमिट। यस, प्रेसिडेंट हैज टू गिव द एसेंट, प्रेसिडेंट हैज टू गिव द सिग्नेचर, लेकिन ऐसा नहीं है कि विद इन ये टाइम फ्रेमवर्क कुछ है उसके अंदर प्रेसिडेंट को ये काम करना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली ऑल्सो नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज बेसिकली ए इजी क्वेश्चन। अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज करेंगे, इट्स अ इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट ए वेरी टफ क्वेश्चन। आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स हम लोग का ये सेशंस देख रहे हैं जो जिसको इतना आइडिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ये क्वेश्चंस को, थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन आप अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 of our session। With reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statement। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। जनरली फाइनेंशियल बिल जो होता है, फाइनेंस बिल जो होता है, ये नॉर्मल मनी बिल जैसा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में पास करने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा कैन अमेंड द बिल, यस डेफिनेटली।
Rajya Sabha can reject the bill, definitely. Rajya Sabha can take no action, उसको ऐसे रख सकता है, जैसे वे वैसे ही रखेगा, पास भी नहीं कराएगा, रिजेक्ट भी नहीं करेगा, सजेशंस भी नहीं देगा। राज्यसभा कैन डू ऑल दिस थिंग्स इन केस ऑफ फाइनेंस बिल. So here, when the Lok Sabha transmit the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend. Yes, it can. It can reject the bill also. Yes, option 1 is correct. Option 2 is saying when the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. अगर हम मनी बिल के बारे में बात करेंगे, लोकसभा का ही इसमें पावर रहता है. लोकसभा राज्यसभा में जब ये बिल पेश करेगा, राज्यसभा इसको अमेंड कर नहीं पाएगा, राइट. राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर नहीं पाएगा, दैट इज ऑल्सो राइट. राज्यसभा कैन गिव सम सजेशन ओनली, कैन गिव सम रिकमेंडेशन, ये करेक्ट है. और राज्यसभा अगर कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 14 days इट इज डीम्ड टू बी पास्ड इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट द मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल like finance bill, it can only make some recommendation. So पहला दोनों statement correct है. The third option is saying in the case of disagreement between Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. Yes, money bill में कोई joint sitting नहीं होता है, क्योंकि money bill में तो automatically मैंने आपको बोल ही दिया कि अगर कोई disagreement होगा भी, इसमें कोई problem नहीं है. 14 days के बाद automatically it is deemed to be passed in both house of the parliament. तो definitely इसमें joint session का कोई बात ही नहीं है. बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, ये भी गलत है. जॉइंट सिटिंग कैन हैपन, जॉइंट सिटिंग कैन हैपन फॉर फाइनेंस बिल, लेकिन कैन हैपन और नेसेसरी सेम चीज नहीं है. देखिए एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये एंटायर क्वेश्चन में. दिस वर्ड इज द की ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो हम लोग का आर्टिकल 108 में है, ये जनरली ऑर्डिनरी बिल का डिसएग्रीमेंट में होता है. फिनेंस बिल का डिसएग्रीमेंट में भी हो सकता है, क्योंकि फिनेंस बिल में हो इट कैन हैपन दैट लोकसभा इज पासिंग द बिल, राज्यसभा इज रिजेक्टिंग द बिल, लेकिन ये हो सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट इट इज नेसेसरी टू हैव ए जॉइंट सेशन. सो इन दिस केस ए जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है. एंड दिस पर्टिकुलर वर्ड इज बेसिकली टेकिंग दिस क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन का एसेंस है ये वर्ड है. मैंने पहले भी आपको बोला है कि की वर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये आज का सेशन का एक टेक है, आप बोल सकते हो. सो डेफिनेटली हियर हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 of our session. Consider the following statement. Statement 1 is saying Supreme Court of India has held in some judgment that reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. देखिए ये तो सही है कि आप रिजर्वेशन डेफिनेटली दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी. इफ आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केस दैट इज इंद्रा सोनाई, right? You all know this is a very very famous case. This case is also known as the Mundal case. Basically the Mundal commission, which was the second commission related to the other backward class, it was basically that particular commission was started by Morarji Desai, and the report of the commission of Mundal commission was implemented by National Front's Prime Minister VP Singh, right? So to counter that particular, according to Mundal commission, the OBCs was given 27% reservation. So you know, आपको पता होगा कि ये मुंडल कमीशन का रिपोर्ट जब इंप्लीमेंट किया था वीपी सिंह का गवर्नमेंट, तो पूरा देश में बहुत हल्ला हुआ था. ठीक है, सुइसाइड हुआ था, जनरल कास्ट का स्टूडेंट ने सुइसाइड किया था अपना वो आग डाल के, आपको पता होगा शायद. एनीवे, तो ये रिजर्वेशन का जो रिकमेंडेशन था मुंडल कमीशन को, इसको काउंटर करने के लिए इसको चैलेंज किया था. इंद्र शनाई केस हुआ था, इसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज इन 1992. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज बोला था. इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत
ऑब्जर्वेशन था जिसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट के यस रिजर्वेशन इज पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, एंड actually supreme court also upheld this Mondal commission's report कि yes 27% reservation of OBC can be done। लेकिन उसमें ओबीसी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट भी था कि आपको अगर क्रीमिलियर से बिलोंग करेंगे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमिलियर होंगे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो मोंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में हुआ था इसके अगेंस्ट में काउंटर किया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट मोंडल कमीशन का रिपोर्ट की अपहोल्ड किए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि रिजर्वेशन इज पॉसिबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 335 दैट इज मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप रिजर्वेशन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मतलब सोचिए आपने रिजर्वेशन के चक्कर में बीएसएफ ने या इंडियन आर्मी में ऐसा किसी को रिक्रूट किया है जो एफिशिएंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये तो हम लोग का देश का सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा ना। तो रिजर्वेशन आप दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एफिशिएंसी भी मेंटेन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। वो एफिशिएंसी को मेंटेन करके आप 27% रिजर्वेशन दीजिए ओबीसी को या एससी एसटी को रिजर्वेशन दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस statement one is a basically a correct statement. Even if you see the another Supreme Court case, that is M नागराज, एम नागराज केस जो है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि देखिए रिजर्वेशन आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आर्टिकल 335 जो है ना उसको दिमाग में रख के आप रिजर्वेशन दीजिए। एफिशिएंसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप आर्मी में किसी को रिक्रूट किया है, आप एसएसबी में किसी को रिक्रूट किया है, आप बीएसएफ में किसी को रिक्रूट किया है, आप आईटीबीपी में किसी को रिक्रूट किया है जो एफिशिएंट ही नहीं है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये तो हम लोग का देश का सिक्योरिटी थ्रेटिंग हो जाएगा ना। तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। Statement 2 is saying Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency. No, Article 335 में आपका ये efficiency term तो दिया गया है, लेकिन इसको define नहीं किया गया है। So Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of the administration. No, it's not a correct statement. So here statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. तो which of the following statement is correct respect to the above statement? आप ये बोल सकते हो कि statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option C is the correct answer. Good question. Good question I will say because इसमें आपको इंद्रसोनाई केस और एम नागराज का जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसको भी दिमाग में रख के ये आंसर देना पड़ेगा। गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल 335, you have to understand the reservation policies, then only you can give the answer. So it's not a very easy question, it's not a tough also, it's a moderate question. Next we will go to the next question, that is question 15 of our session, question 99 of the set. With reference to scheduled areas in India, consider the following statement. Within a state, the notification of an area as scheduled takes place, scheduled area takes place through an order of the president. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. It's a correct, it's a correct statement. First of all, if you talk about the scheduled area, अगर आप scheduled area का बात करोगे तो स्पेसिफिकली इसका मेंशन हम लोग को मिलेगा आर्टिकल 244 में। एंड if you talk about the schedule 6, then in schedule 6 we have those states where we can have schedule areas in a district basis, right? in a district, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट को आप शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हो वो स्टेट्स में, जैसे आपका आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, मेघालय है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को आप शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हो, एडीसी इसको बोला जाता है। सो ये आपको दिया गया है आपका शेड्यूल 6 में। सो दिस इज करेक्ट। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन होता है ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर थ्रू होता है। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Statement 2 is saying the largest administrative unit forming the scheduled area is the district। जो मैं पहले आपको बोला है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है डिस्ट्रिक्ट में, सो यही लार्जेस्ट है। एंड द क्लस्टर ऑफ विलेज लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। स्पेसिफिकली एक एक्ट आया था हम लोग का देश में जिसको हम लोग बोलते हैं पेसा एक्ट। पेसा एक्ट जो 1996 में आया था, इसमें शेड्यूल्ड एरिया अगर आप बोलेंगे
तो डिस्ट्रिक्ट है, देन आपका ब्लॉक्स है, और उसके बाद आपका ग्राम सभा है। तो सबसे छोटा तो ग्राम सभा होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोला गया है। तो डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ब्लॉक भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ग्राम सभा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। सो इसको अगर आप पेशा एक्ट मान के चलोगे तो डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट of the scheduled area which can be termed as a autonomous district council on all those states which are mentioned in schedule 6। लेकिन ब्लॉक तो सबसे छोटा होगा, ग्राम सभा में तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, तो ये डेफिनेटली एज पर पेशा एक्ट ये भी शेड्यूल्ड एरिया है, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। सो लोएस्ट विल बी क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन ब्लॉक एंड आपका लार्जेस्ट है डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन 2 is also correct. So if you are aware about the PESA Act, if you are aware about the Schedule 6 and Article 244, you can take the decision of this statement. The last one is the Chief Minister of the concerned states are required to submit annual report to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state. No, it's not correct. क्योंकि एक्चुअली चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर रिपोर्ट देता है, होम मिनिस्ट्री नहीं, गवर्नर प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देता है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन दिस केस द करेक्ट आंसर विल बी 2, दैट इज ओनली 2, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances। हाँ, ये तो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पहला रोल है कि उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, राइट। सो स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 355, इसमें ये मेंशन भी है कि स्टेट को ही पहले देखना पड़ेगा, कि सेंट्रल को देखना पड़ेगा कि स्टेट्स का जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और एक स्टेट अगर एज पर आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो नहीं करेगा फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, देन आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये गवर्नर का रिकमेंडेशंस भी हो सकता है, प्रेसिडेंट खुद भी ये डिसीजन ले सकता है। सो डेफिनेटली ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ करेक्ट, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आप किसी को अरेस्ट करेंगे उसके तो लीगल एड नहीं मिलेगा। प्यूनिटिव में डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन प्रिवेंटिव में नहीं मिलेगा। आप अगर आर्टिकल 22 को गो थ्रू करेंगे तो आप देखना उसमें बोला गया है कि डेफिनेटली आर्टिकल 22 में डिटेंशन के अगेंस्ट में कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, बट दैट डिटेक्शन मस्ट बी प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शंस मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा पुलिस को, आपको विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है, और आपको लीगल एड लेना पड़ेगा। डेफिनेटली दिस प्रोटेक्शंस आर गिवन फॉर द प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव में तो ऐसा नहीं होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, दैट इज कोटा, कॉन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। देखिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो एक्यूज होता है, और एक्यूज अगर पुलिस के सामने कुछ कॉन्फेस कर लेता है तो वो हम लोग एविडेंस के तरह यूज नहीं करते, क्योंकि एक्यूज जो है उसको कॉन्फेस करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, दैट इज द नॉर्मल रूल। तो ये तो ठीक है, लेकिन देखिए पोटा जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसमें थोड़ा सा चीज अलग है। इनफैक्ट पोटा इज दैट पर्टिकुलर एक्ट विच वाज मेड बाय ए जॉइंट सिटिंग, सो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल आल्सो। राइट नाउ पोटा इज रिपील्ड, पोटा को रिपील किया गया है। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट है जिसमें कॉन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन बी यूज्ड। पोटा एक एक्सेप्शन है जिसमें पोटा, सिर्फ पोटा ही नहीं, महाराष्ट्र का जो आपका एक्ट है मोका, देन गोका गुजरात का, इसमें भी ये होता है कि आपका पुलिस कैन यूज द एक्यूज्ड कॉन्फेशन एज द एविडेंस। तो ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो याद रखना ये एक्चुअली पोटा के लिए एप्लीकेबल है। पोटा जो अभी रिपील्ड है वो इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें
जो एक्यूज है वो अगर कुछ कॉन्फेस कर लेता है तो पुलिस कैन यूज इट्स एट एविडेंस एंड ऑल्सो द जुडिशियरी कैन ऑल्सो यूज इट एज एन एविडेंस. सो बेसिकली इधर कैन नॉट दिया गया है. अगेन अगेन एंड अगेन एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. ये ऑप्शन 3 जो है ये बेसिकली इनकरेक्ट है. सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? This is only 2. This is basically, you can say it's a moderate question. It's little bit of moderate to difficult. You can say it's not very easy because इतना कॉन्स्टिट्यूशनल इनैक्टमेंट को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. चलिए, ओनली 2. सो बेसिकली गाइज दीज आर द क्वेश्चन. ठीक है, तो आई होप कि ये जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ है. आप अगर एग्जाम दिए हो तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा हम लोग का जो आंसर किए उससे. मैंने ट्राई किया है जितना हो सके एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने एक्सप्लेन किया भी है. सो दिस ईयर माय टेक इज इन द पॉलिटी सेक्शन दे हैव आस्क्ड अबाउट सम ऑफ द important पार्लियामेंटरी एनेक्टमेंट्स. पार्लियामेंटरी जो एनेक्टमेंट्स है, जो एक्ट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा फ्यूचर में देख के जाना पड़ेगा. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स आप पढ़ के चले जाएंगे, सिर्फ अमेंडमेंट्स देखेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो देखेंगे, ये इनफ नहीं है. आपको थोड़ा सा गवर्नेंस और एक्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे.